is my heartiest pleasure to host today's session. That is, let's talk about why we need to restore the planet Earth. Before starting the session, I would like to introduce myself. Hi, I'm Jagriti, born to a wonderful couple, Mr. S.P. Shramali and Ms. Pushpa Shramali in Udaipur, where I completed my schooling from Maharana Mewat Public School. I was awarded as a Best NCC Cadet Girls and was Sergeant of Girls NCC. And I was recommended as for adventurous courses from my school. Introvert in my looks and extrovert in my action. That was me in the school. I have completed my graduation in science for BN Girls College. Thereafter, I have completed my MBA from Prestige Institute of Management Research. I was a hostelite and I have enjoyed my hostel life to the fullest. I used to listen to the problem of my colleagues and my friends over there and give them suggestions for whatever problems going through in their life, and I used to enjoy that part of my hostel where I met my husband, and I know him from last 22 years, and it's been 11 years of beautiful marriage, and he works in ICICI Bank. His name is Mahesh Shukla. I'm a mother of 8-year-old darling daughter Mishti. She is a passionate child. She is best kid I have ever met in entire of my life. She's smart, sensitive, explorer, learner, reader, and she loves reading like anything. She's just 8 years old and she has her own library of books. Talking about Mishti, I want to share an incident. One evening, I and my father and my daughter Mishti were sitting, and my father randomly shared a message on WhatsApp that electric cars are taking over the automobile industry, and the automobile industry will slowly get finished. So my daughter interrupted. She was a passive listener to our conversation, and my daughter interrupted in between, and she shared that how can you be so irresponsible that don't you know that electric car are environmental friendly, they are less creating pollution, and so on. The discussion and arguments carried on. That was the night which was very I was it was very difficult for me to make her understand, and she was keep on asking me that, mama, why people are not focusing on environmental issue, why they are not concerned about hazard, don't they know environmental pollution called hazard, and because of hazard animals are dying, species are extincting. So it was very difficult for me to make her understand that yes, the environmental issues are very serious, but yes, this is the very reason why I'm here. I'm here to here for her cause, and it is very funny, but I still am not aware of what is the cause of my life, but I know someday I will make out and find what is the cause of my life. To start with, I would like to share about some beautiful facts of our Earth. That is, our Earth is a home of 195 independent countries, 60 dependent countries, 7 continents, 5 oceans, 186 large rivers, adding up to 7.9 billions of humans and 20 billion animals, and 8.7 million species and 3 trillion trees. Yes, the number are huge and large, but still there is a need to discuss and talk why there is a need, and there is a need that we need to discuss about restoring the planet Earth. We are here to create awareness about environment, need to make shift of environment as a cause from back of our mind to the front. So regarding environment, how it is not about the environment only. It is about how we can make the world not only sustainable of environment, but also a great place to live. And Dr. Kirti will let us know how and what is the need to make environment as our topmost priority. And Anupama ji will tell us how we can shift our current scenario, current setup to be more environmental friendly. So I now over to Dr. Kirti. Kirti जी आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. Thank you, Jagriti. Thank you, Jagriti. You started with the session, you hosted the session, and it was wonderful, a wonderful introduction of yours. At the same time, it was wonderful, knowing you
your journey. It was very important, and welcome to the Cleft platform. You are our host as well. This session is very close to me. This is something which I am living in and out, and I'll be sharing my experiences later. Thank you, guys. Anupama is an environment freak, and me and Anupama, we have joined a Facebook group, named as Eco Freak नाम से एक Facebook group है जो अनुज रामात्री नाम से बंदे ने शुरू किया है. अगर आप उसको अनुज रामात्री सारी दुनिया में ढूंढ के उन लोगों को के ऊपर वीडियोस बनाता है जो एक्चुअली में एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, बहुत अमेजिंग सॉल्यूशंस है. अनुज रामात्री के सारे लिंक्स मैंने पेस्ट कर दिए हैं चैट में, और मैंने हमारे क्लेफ्ट से रिलेटेड भी सारे लिंक्स चैट बॉक्स में डाल दिए. सो आई विल नाउ शेयर माय स्क्रीन एंड विल ट्राई माय लिटिल बिट. जितना भी मैं इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट बनाना इज माय मेन intention. That's all. I just want to initiate the conversation. So I want to share my screen. Okay. So can you all see the screen? Yes. Okay. So 22nd April को अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है. इस बार का हर साल का अर्थ डे का कोई थीम होता है जो कि उस मोमेंट पे सबसे रेलेवेंट इशू होता है. इस साल का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ. तो आज का टॉपिक भी यही है कि हमें क्या जरूरत है रिस्टोर आवर अर्थ पे बात करने की, क्यों जरूरत है, और प्लस क्या एक दिन से हो जाएगा. मतलब इट हैज टू बी अ मूवमेंट एंड इट हैज टू बी ईयर वाइड मूवमेंट. तो एनवायरमेंट क्राइसिस की अगर बात करें तो ये एक नंबर 1 इंटरनेशनल प्रॉब्लम. ये कोई देश की या दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है जिसको समहाउ आई डोंट नो पॉलिटिकल लीडर्स इग्नोर कर रहे हैं. जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं. साइंटिस्ट लोग वार्न करते जा रहे हैं, बहुत सालों से साइंटिस्ट लोग वार्न कर रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन फुटप्रिंट लोगों का बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, वाटर, ये एक एक क्राइसिस के बारे में साइंटिस्ट बहुत देर से बोल रहे हैं, लेकिन लीडर्स सुन नहीं रहे. बेसिकली सुन भी रहे हैं तो दे आर नॉट मेकिंग एनी इफेक्टिव रूल्स, एनी इफेक्टिव चेंजेस. और इसके बारे में जागृति, डिड यू टॉक अबाउट ग्रेटा थनबर्ग? She is an environmental activist. She is a young girl, and every Friday she take a break, and there is a program. Fridays for Future. Fridays for Future. दुनिया में स्कूल के बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं आजकल दुनिया में लीडर्स को जगाने के लिए. एंड फ्राइडेज इवन इंडिया से बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, अब बहुत बच्चे ज्वाइन करते हैं उस मिशन को. तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस चीज को बच्चे प्रमोट कर रहे हैं, हम एडल्ट को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए उस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. एग्जैक्टली. या तो उसमें से जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस को लेके, तो अब हमें जरूरत है एनवायरमेंटल लिटरेसी की. एनवायरमेंट पता तो होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उस प्रॉब्लम का मतलब क्या क्या है. जो बार बार बोला जाता है बिजली बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ उगाओ, उसके पीछे रीजन क्या है. बिकॉज नॉलेज इज पावर. जैसे हमें किसी चीज का नॉलेज मिल जाता है तो हाँ, वी सडनली feel powerful to actually we feel empowered to make that change. I'm coming on to air pollution. Just a reminder, कुछ साल पहले 2016 में जब दिल्ली में क्राइसिस आया था, सडनली सारे स्काई एकदम डार्क हुए थे. शायद हम आज भूल चुके हैं कोरोना की वजह से एयर क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है, पर 500 के ऊपर जाने पे एयर क्वालिटी सीवियर होती है. और दिल्ली में वो दिन आए थे जब 500 के ऊपर एयर क्वालिटी चला गया था, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया था, और जीना, सांस लेना, आंख खोलना मुश्किल हो गया था. सीवियर एयर पोल्यूशन एपिसोड नाम से उन दिनों को याद किया जाता है, ग्रेट दिल्ली स्मॉग भी बोला जाता है. और वापस वो दिन आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं है गवर्नमेंट ने, या ऐसा कुछ किया नहीं हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में कि वो दिन वापस नहीं आ सकता. बहुत सारे रीजन है पोल्यूशन एमिशन के. नेचुरल रीजन है, सिटीज बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन, बहुत सारे रीजन है. तो जो उसमें जो एयर पोल्यूशन में जो बहुत सारा वरिष्ठम एक चीज आई है वो ग्रीन हाउस गैसेज है. ग्रीन हाउस गैसेज में मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे. तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है वो भी हम देखेंगे. इसमें इस चार्ट को मैंने क्यों रखा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इज 20 एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज के वजह से. ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, दीज आर गैसेज इन अवर एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप सोलर हीट. जैसे कि ये इसमें हम एटमॉस्फेयर देख सकते हैं, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है लेफ्ट साइड वाला. इसमें ये ग्रीन हाउस गैसेज हमारी नॉर्मली
क्या करती है, जो सोलर रेडिएशन आती है उस सोलर रेडिएशन को कैप्चर करती है और अर्थ को एक तरह से गर्म रखने का काम करती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ये ह्यूमन एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये हो गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अर्थ का टेम्परेचर इससे अफेक्ट होने लगा है। तो ये जो गैसेस है, ये दो तरीके से, एक तो जो वेट वेस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो वेट वेस्ट जो हम घर में अगर सेग्रीगेट करने के लिए बोला जाता है, बैंगलोर में मेरा ब्रदर रहता है, उसने बताया था कि वहाँ पे म्यूनिसिपल वाले कलेक्ट करते हैं, सेपरेट कलेक्ट करते हैं, सो डेफिनेटली दे आर रिसाइकलिंग इट प्रॉपर्ली। तो वेट वेस्ट को ले जाके कंपोस्टिंग के यूज में लाके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जबकि अगर आपने उसको नहीं प्रॉपर्ली वो करा तो वो जाके लैंडफिल में जाएगा। हमने दिल्ली में कूड़े का पहाड़ किस किसने देखा है, एक्चुअली में वो लैंडफिल्स है, जो वो कूड़ा है जो सारा वहां पे जाके डंप हो गया है, क्योंकि कूड़े को रिसाइकल करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्स है। कितनी खिचड़ी है, उसके अंदर प्लास्टिक है, उसके अंदर वेट वेस्ट है, उसके अंदर ड्राई वेस्ट है, सब कुछ मिलके तो आप उस लेवल पे जाके सेग्रीगेट कर ही नहीं सकते। तो जो ये है कि एक और सोर्स होता है ग्रीन हाउसेस का, जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं, गैसेस होते हैं, वो कूलिंग के काम आता है। और जो एसी हम यूज करते हैं उससे भी ये गैसेस एमिट, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। और इवन फूड वेस्ट अकेला 10% ग्रीन हाउस टोटल गैसेस के लिए 10% तो फूड वेस्ट अकेला ही रिस्पॉन्सिबल। तो इसका जो सोल्यूशन नीलम जी ने जैसे बताया कि वन इज कंपोस्टिंग, और आजकल बहुत सारे लोग घर में अपने गमलों में, मिट्टी के गमलों में घर में ही कंपोस्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, और वो इको फ्रीक वाले साइट पे जाके आपको वो सब लोग जो रियल लाइफ में ऐसे हीरोज हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे। तो कमिंग ऑन टू वाटर, हम सबको पता है और इसके बारे में बात करने की हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स अगर हम बात करें तो बेसिक ड्रिंकिंग वाटर भी 780 मिलियन लोगों के पास आज की तारीख में नहीं है। अगर हम एवरेज बनाए तो हर 10 में से एक इंसान जिसके पास पीने का पानी का फैसिलिटी नहीं है, और हम लोग इस चीज को कितना इजीली इग्नोर कर देते हैं इतनी। और रूरल अफ्रीका में एटलीस्ट अगर इंडिविजुअल बात करें तो 6 किलोमीटर हर रोज 18 किलो पानी लाने के लिए एक लेडी वॉक करती है। 800 से ज्यादा बच्चे 5 साल की उम्र तक डायरिया और इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से मर जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये वाली डेथ इंडिया में होती है। और इवन बेसिक सैनिटेशन, टॉयलेट वगैरह भी 2.3 बिलियन लोगों के पास एक्सेस नहीं है। 1 बिलियन गवर्नमेंट के भी पीपल, बैक ऑफ द माइंड में है ये दीदी। विजन नहीं है, यस, फ्रंट में नहीं है, ये विजन चीज नहीं है। इमरजेंसी नहीं है। जैसे आज हम्म। हेल्थ केयर सेक्टर को बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर कोलैप्स कर गया है कोरोना में। हेल्थ केयर सेक्टर हम्म। कोलैप्स करा नहीं है, हेल्थ केयर सेक्टर पहले से कोलैप्स था, सिर्फ एक्सपोज हुआ है कि वो कितना बुरी हालत एक्सपोज में हुआ था। है। एग्जैक्टली तो इसी तरह से शायद कोई दिन आएगा जब एनवायरनमेंट को लेके सारी दुनिया में इसी तरह से अवेयरनेस आएगी। और इवन बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। वाटर कंजर्वेशन को लेके एक्चुअली फ्यू टिप्स कि हम पानी कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम टॉयलेट्स की बात करें तो टॉयलेट पे दो वो होते हैं, फ्लश टैंक के ऊपर दो स्विच होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो वो जो छोटा वाला होता है वो कम पानी निकालता है, वो जब ड्रेन भी करता है। या कम पानी ड्रेन करता है। तो whenever you go for urination, then try and use the smaller one. What I try now is whenever I find an Indian toilet, I use Indian toilet because that does not waste much water, at least while urination. Then लीक, ऑब्वियसली आपके घर में लीक तो होना ही नहीं चाहिए। लीक तो एक एनर्जी वाइज भी बोलते हैं कि लीक होना अच्छी बात नहीं है। शावर में बहुत ज्यादा लग्जरी शावर हर रोज लेने की जरूरत नहीं है, कैन टेक अ क्विक शावर। शावर और बाल्टी से नहाने में ऑप्शन हो तो बाल्टी से नहाना चाहिए, दैट वेस्ट लेस वाटर। एक आजकल एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट आजकल स्टार जो भी लोग नए मशीन खरीद रहे हैं, 5 अनुपमा ने स्टार। अभी हाँ, अनुपमा ने अभी खरीदा है, तो शी माइट बी एबल टू टेल कि एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन, तो एनर्जी एफिशिएंट एसी, जो भी नए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम खरीदते हैं, हम उन स्टार्स को जरूर चेक करें। चीपनेस के चक्कर में हम ना जाए, rather than we एग्जैक्टली। should go for quality। एंड ये मुझे नया पता चला है कि पानी पौधों में देना भी उस टाइम पे चाहिए जब ठंडा टाइम हो, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में। मतलब या आप तो दोपहर में पीक exact- टाइम पे पानी मत दो। ये भी मुझे आज नया पता चला है। वाइल्ड बहुत लोग मैंने देखा है घर के बाहर का आंगन सफाई करवाने के लिए रोज सुबह शाम पानी से धो रहे हैं। इतना जरूरत नहीं है इतना पानी वेस्ट करने की, दैट कैन बी अवॉइडेड। So there is one thing called aerators for taps.
इन सब के बारे में इको फ्रीक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो लोग बना रहे हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं, कुरियर भी कर देते हैं। ये एरेटर्स अगर हम नल पे लगा दें तो पानी का फ्लो रेट कम हो जाता है और बहुत सारा पानी वेस्ट बच जाता है। खासकर बर्तन धोते वक्त मुझे लगता है कि इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप फुल स्पीड में अगर अगर हम बर्तन धोते हैं तो पानी इधर उधर उछलता है। और देन कमिंग ऑन टू प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस। प्लास्टिक वेस्ट बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 400 से 500 साल भी लग जाते हैं, वो डिकम्पोज ही नहीं होता है। तो बेसिकली प्लास्टिक का कचरा तो वो हमेशा के लिए एक तरह से कचरा ही आपने है। कचरा ऐड ही कर दिया है एनवायरनमेंट में, और वो एनवायरनमेंट से कहीं जाने वाला नहीं है। प्लस जो मेरा एज ए डॉक्टर, मैं जो एक चीज शेयर करना चाहूंगी, आजकल एक चीज हो गई है माइक्रो प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के टुकड़े होते 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 ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, और ह्यूमन प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, जब बच्चे की डिलीवरी होती है और जिस चीज से बच्चा माँ के यूट्रस से जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन प्लेसेंटा। कैन यू बिलीव इट, ह्यूमन प्लेसेंटा में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। एंड Oh my God. it is a shocking news as a for a medical fraternity. It is a shocking news because प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से आएगा? माँ के ब्लड से आएगा। माँ के ब्लड में कहाँ से आएगा? माँ के पेट से आएगा। मतलब माँ ने जो खाना खाया या जो पानी पिया, उस पानी में कहीं ना कहीं प्लास्टिक जा रहा है। पेट से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रहा है, ब्लड से वो एब्जॉर्ब होके यूट्रस के थ्रू होते हुए प्लेसेंटा में जा रहा है, और वो प्लेसेंटा उसको फिल्टर कर दे रही है कि ताकि वो बच्चे के ब्लड में ना जाए। इट इज, I don't know what to say. This is serious. This is serious. As serious as COVID pandemic. The only point is, COVID pandemic आज हमारे सर पे खड़ा है, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये किसी भी दिन सर पे आके खड़ी हो जाएंगी। We don't know. It's just like जैसे ग्लेशियर ये दिखाते हैं ना कि आइसबर्ग का टिप, तो हमें जो प्लास्टिक वेस्ट दिख रहा है कि हाँ प्लास्टिक वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन एक्चुअल में प्लास्टिक वेस्ट कितना बड़ा प्रॉब्लम है, हाउ ह्यूज दिस प्रॉब्लम इज लाइक, जो अंडरग्राउंड जो छुपा है, जो हमें दिखाई नहीं देता। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सारे बीचेस बीचेस पे आजकल हम सब ने वो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड वीडियोस देखे हैं एनिमल्स के। मैंने वो फोटोज नहीं लगाए, दे वो रियली डिस्टर्बिंग फोटोज। एनिमल्स, गाय, एनिमल्स, वेल्स, इन सबके पेट पे, इन सबके बॉडी से जो प्लास्टिक के टुकड़े निकले हैं, इनके से जो डिसफिगर्ड हुए हैं एनिमल्स, सी एनिमल्स, इट वाज रियली डिस्टर्बिंग एंड आई डिड नॉट यूज दोज इमेजेस। अब प्लास्टिक के बारे में हर साल 10 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हमारे ओशन में चला जाता है। मतलब आज मैं एक वीडियो देख रही थी एक बंदे का जो प्लॉगिंग करता है, मतलब ये भी इको फ्रीक के यूट्यूब पेज पे था उसका वीडियो। तो प्लॉगिंग माने कि आप जब भी वॉक पे जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे या रनिंग पे जा रहे हो, तो आप एक थैली लेके जाते हो, और जो भी रास्ते में आपको कोई भी कचरा दिखता है, प्लास्टिक प्लास्टिक आपको साथ में उठाते उठाते जाते हो। सो बेसिकली और जॉगिंग प्लस प्लकिंग द कचरा, तो प्लॉगिंग, इसको प्लॉगिंग बोलते हैं। बहुत लोग, बहुत जगह प्लॉगिंग क्लब्स बने हुए। तो उसने बताया कि जब वो लोगों को मना कर रहा था कि समुद्र में कचरा मत डालो मत डालो, ये लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह सब मिलके जाते थे और कचरा उठाते थे। अगले दिन जाता था तो फिर देखता था कि सी बीच पे उससे भी डबल कचरा है जिसने इन्होंने उठाया। तो इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के अवेयर करने की कोशिश की कि प्लीज आप ये कूड़ा मत शेयर करो। बट लोगों का जवाब ये था कि सरकार हमसे इतना टैक्स ले रही है, तो सरकार करेगी, पैसा लगाएगी, सफाई करेगी, हमें हम like people feel entitled to throw the garbage. It's really a sad state of affair. Ignorance है, awareness की कमी है, और एज अ क्लेफ प्लेटफॉर्म हमारा ये छोटा सा अटेम्प्ट है कि हम इस अवेयरनेस को बढ़ाएं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। अगर आपको दुनिया बदलनी है तो आपको खुद से शुरुआत करनी होगी, आप किसी और को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो। 50% जो सारा प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक है। ये इससे भी बड़ी सरप्राइज की बात है कि ये जो 50% प्लास्टिक है ये हम कुछ सेकेंड यूज करके फेंक देते हैं। जस्ट लाइक चिप्स का एक पैकेट हमने खरीदा, खोला, चिप्स खाया और फेंक दिया। सो दिस इज रियली सैड कि मतलब जस्ट कुछ मिनट्स में हम उसको फेंक देते हैं। दूध दूध जो हमारे यहाँ आता है वो प्लास्टिक में आता है, ब्रेड जो हमारे यहाँ आता है वो प्लास्टिक में आता है। जो जो अगर हम कहीं बाहर गए, वहाँ पे पानी नहीं है पीने का, पानी जो हम पीते हैं वो प्लास्टिक बॉटल है। ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है, इन प्लास्टिक को आप रियूज भी नहीं कर सकते हो। इवन 1 मिलियन मरीन एनिमल्स हर साल प्लास्टिक पोल्यूशन से, लेस देन 9% ऑफ ऑल प्लास्टिक गेट रिसाइकल्ड। इसका कारण ये है कि जो हम वेस्ट सेग्रीगेट नहीं करते। अगर आप अपने घर में वेस्ट सेग्रीगेट करो तो हम प्लास्टिक को ज्यादा रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह बायोफ्यूल बनाने में काम आ रहा है, बहुत लोग नए नए रिसर्च कर रहे हैं। ये बात अलग है कि सरकार उन रिसर्च फंड नहीं कर रही है, लेकिन लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए। आप इको फ्रीक के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, अनुज रामात्री के यूट्यूब चैनल पे। और उसमें लोगों ने बायोफ्यूल बनाया है प्लास्टिक से, उसमें उन्होंने गिफ्ट्स बना रहे हैं। ऐसी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हर चीज
प्लास्टिक से बन रही इको ब्रिक्स बना के लोग उस इको ब्रिक से घर बना रहे हैं। प्लास्टिक से रोड बनते हैं। प्लास्टिक को अगर आप गवर्नमेंट मतलब अगर आप रिसाइकल करके और प्रॉपर कबाड़ी वाले को दे दो, तो वो कबाड़ी वाले प्रॉपर जगह पे बेच के और उनसे एक्चुअली में जो गवर्नमेंट की जो रोड मेकिंग एजेंसीज होती हैं वो उस प्लास्टिक को रोड मेकिंग में भी यूज करती हैं। और ये देयर विल बी मोर प्लास्टिक इन आवर ओशंस देन फिश बाय 2050। आई डोंट नो इफ वी गो बाय दिस स्पीड, आई डोंट नो इफ वी विल एवर बी एबल टू सी 2050। एंड जो सरप्राइजिंग था, ह्यूमंस ईट ओवर 40 पाउंड्स ऑफ प्लास्टिक इन देयर लाइफ टाइम। गाइस, दिस इज हॉरिबल, दिस इज हॉरिबल। एंड सो फ्यू फैक्ट्स अबाउट प्लास्टिक। तो पिछले 15 साल में पूरी दुनिया का जितना प्लास्टिक है उसका आधा प्लास्टिक लगभग पिछले 15 साल में। और ये प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारा कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। प्रोडक्शन, कोई भी चीज का प्रोडक्शन कहाँ से आता है? कंज्यूमरिज्म से आता है। हम जो चीज यूज करेंगे, हम जो चीज लाइक करेंगे, हम जो चीज ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जो कंपनीज है वो उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक। सुरेंद्र जी, आजकल मोटा प्लास्टिक आ गया है। आजकल मार्केट में 50 माइक्रोन से मोटा प्लास्टिक लाइक मटेरियल आ गया है, जो थैलियों की जगह आप यूज कर सकते हो। अगर आप वो वाले पन्नी लेके आएंगे फॉर वॉटेवर, कूड़ा उठाने के लिए या छोटी छोटी चीजें जो हम सब्जी लेने के लिए, आइडियली हमें क्लोथ बैग या जूट बैग लाना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करें, इनके बहुत डिटेल्ड सोल्यूशन है। वो आज हम इसलिए नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि हमें 1 घंटे में सेशन खत्म करना है, 1 घंटा या उससे कुछ मिनट्स ऊपर। तो इन सब चीजों पे 1-1 घंटे का सेशन हो सकता है। एक्चुअली दीज आर लॉन्ग टॉपिक एंड विच वी विल बी डूइंग, वी विल बी इनवाइटिंग पीपल जो एक्चुअली में इन चीजों के रियल लाइफ सॉल्यूशंस अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो कि नेक्स्ट 1-2 महीने में भी हमारे सेशन पे आएंगे। तो बेसिकली प्लास्टिक को ड्यूरेबल बनाने के लिए ये ऐसी ऐसी चीजें उसमें मिला देते हैं कि वो 400-500 साल तक वो ब्रेक डाउन नहीं करे, which is a really big problem. And 2.3 million टन 1950 में बनता था और आज 448 मिलियन टन 2015 में बना है। 2020 का तो डेटा भी मैंने इसमें डाला भी नहीं है और 2050 तक ये डबल हो जाएगा। 2 मेजर सोर्सेज जो प्लास्टिक रैपर और प्लास्टिक बॉटल है, जिनको सब्स्टिट्यूट करना एक्चुअली में मुश्किल है। जैसे सुरेंद्र जी ने बोला कि इंस्टेंटली सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है। इनका जो सोल्यूशन नीलम जी ने बताया था, विच वाज इको ब्रिक, तो वो इको ब्रिक आजकल बहुत लोग बना रहे हैं। इसका एक प्रॉपर तरीका है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा किड, दे आर मेकिंग इको ब्रिक इन एनवायरमेंट क्लब इन देयर स्कूल, और उसी से मुझे आइडिया आया कि हमें भी क्लब में इको क्लब बनाना चाहिए और हम सब ये इको ब्रिक अपने घर में बना सकते हैं। और इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग क्लीन प्लास्टिक जो भी आता है मेरे घर में, क्योंकि इसमें आप गंदा प्लास्टिक नहीं डाल सकते हो। अगर आपको प्लास्टिक पे खाना लगा हुआ है तो आपको उसको वॉश करके ड्राई करके आपको इसमें डालना है। तो आई हैव स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग दैट प्लास्टिक नाउ। अब मैं प्लास्टिक कूड़े में नहीं डालती हूँ। प्लास्टिक और हर चीज में कूड़े में नहीं डालती हूँ। मैं कबाड़ी के लिए एक अलग से डब्बा बना देती हूँ। मैं कबाड़ी को बेचती नहीं हूँ, मैं अपने गार्ड साहब को बुलाती हूँ सोसाइटी के और उनको बोलती हूँ ये ले जाओ। तो ही इज वेरी हैप्पी। उनको बस एक कॉल करने की देर होती है और वो आते हैं और वो ले जाते हैं। वो उसको उसका जो मर्जी बेच देते हैं कबाड़ी को, चाहे उनको 5 रुपए मिले 10 रुपए मिले, बट एवरी वेस्ट इज नॉट नेसेसरी कि हम उसको पूरे उसमें डालें। My father is in the electricity department, retired from the XCN post. और मेरे घर में सबसे ज्यादा बिजली कैसी बचानी है वो पापा ने सिखाया मुझे बचपन से। और अभी भी मैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर में मैं कहती हूँ कि सब मीटर लगाओ हर डिपार्टमेंट में, और जो जिसका सबसे कम आता है बिजली का बिल वो विनर हो जाएगा, उसको कुछ प्राइज दो। उनको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। राइट, यू आर राइट। कमिंग ऑन टू डिफॉरेस्टेशन, आजकल बहुत सारे ड्राइव्स होते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि फलाना जंगल कट रहा है उसको रोको, वहां बिल्डिंग्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, वहां बिल्डिंग्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने। तो जहां जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, जंगल है, उन सब एरियाज को डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जब किसी बहुत बड़े एरिया को ये सारे एग्जिस्टिंग पेड़ काट दिए जाते हैं फॉर ह्यूमन यूज, मतलब उस जगह पे कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज बनेगी जो इंसान लोग यूज करेंगे, तो उसके लिए जब बहुत सारे पेड़, हजारों के पेड़ में तादाद में काटे जाते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट्स जस्ट लाइक रिमूविंग लंग्स ऑफ द अर्थ। इट्स सो सैड। पेड़ हमें जो ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन की आज कितनी कमी आप देख लीजिए। डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है और ये सारे के सारे एनवायरमेंटल इश्यूज इंटरकनेक्टेड है। सरप्राइजिंगली, अगर आप वेट वेस्ट को देखें, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को देखें, अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी खराब होती है, वाटर साइकिल खराब होती है, नेचुरल हैबिटेट जो एनिमल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम वो डिस्टर्ब होता है, सॉइल इरोजन होता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। और इसका सोल्यूशन है कि
जो एक सिंगल मोस्ट सोल्यूशन जिससे कि आप इस सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हो इज प्लांटेड ट्री। एंड प्लांटेड ट्री से मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल में एक प्रेजेंट वो था, अ, यही बायोमेडिकल वेस्ट वाला ही सेशन, जिसमें जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो गेस्ट को आप बुके देते हैं ना, तो वहां पे उन्होंने बुके की जगह सबको प्लांट्स दिया था, एक एक गमला दिया था, Very good एंड विच idea. वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई रियली मतलब हम जब बुके देते हैं तो वो बुके हम यूं उठाते हैं और यूं रखते हैं, मतलब फॉर 1 सेकेंड दैट बुके गोज इन हैंड ऑफ अ पर्सन एंड आफ्टर दैट इट गोज इनटू द ट्रैश बिन। उसकी जगह आप वो प्लांट दो, वो इंसान अगर अपने घर में नहीं लगाएगा तो कम से कम वो गमला आगे किसी को दे ही देगा, किसी न किसी को दे ही देगा। कोई कोई भी गमले को डस्टबिन में नहीं डालेगा, कोई भी किसी सैपलिंग को डस्टबिन में नहीं डालता है। आप बच्चों के बर्थडे पार्टीज में रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हो, बहुत लोग शादियों में रिटर्न गिफ्ट में देते हैं, बहुत बहुत लोग जैसे दिवाली पे दिल्ली में मैंने देखा इतना कल्चर है गिफ्ट एक्सचेंज का, तो उसमें आप गिफ्ट की वैल्यू कम कर दो। मतलब मैं तो आई डोंट बिलीव इन दिस कल्चर आइडियली, बट अगर आप फिर भी दे रहे हैं, बहुत सालों से दे रहे हैं, तो आप गिफ्ट की अमाउंट कम करके साथ में फ्री ऐड कर दो। बहुत तरीके हैं इन चीजों को करने के। बच्चे के बर्थडे पे हमने वेस्टर्नाइज कल्चर कर दिया है, हम लेट नाइट पार्टीज करते हैं, 12 बजे रात को केक काटते हैं, कैंडल्स बुझाते हैं। हम इस चीज को चेंज करके हम अर्ली मॉर्निंग पार्टीज कर सकते हैं, लेट नाइट पार्टीज बंद करके हम अर्ली मॉर्निंग बच्चे के साथ में किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम सुबह जाके पेड़ उगाएं। ऑन एवरी बर्थडे वी कैन मेक इट अ रूटीन। इफ वी कैन नॉट डू Yeah. इट, we can do it on every birthday, we can do it on every special occasion, anniversaries. So we have to make new trends. हम लोग अभी वेस्टर्न कल्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि हमारे सारे ट्रेंड्स सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे अफेक्ट होकर हम लोग सारे ट्रेंड्स को अपनाते जा रहे हैं, आंख बंद करके। वी नीड टू स्टार्ट न्यू ट्रेंड्स, वी नीड टू स्टार्ट व्हाट इज न्यू नॉर्मल। एंड देयर वाज अ कपल, ब्राजील में एक कपल है जिन्होंने 2001 में, ये जो आप एरिया देख सकते हैं, और ये 2019 में दो लोगों ने मिलकर ये पूरा फॉरेस्ट को रीफॉरेस्ट बना दिया। This couple is they planted 2.7 million trees to restore Brazilian forest. और अगर एक कपल कर सकता है तो क्या बाकी लोग नहीं कर सकते हैं? मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इनफैक्ट देयर आर Vision. पीपल हु आर डूइंग, या विजन, एग्जीक्यूशन, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे हैं, उन लोगों को पॉपुलराइज करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम अनुज रावत को फॉलो करें, हम लोगों के पास टाइम है कि करीना कपूर ने आज क्या पहना, और बिपाशा बसु ने आज क्या पहना, और दीपिका पादुकोण ने आज क्या किया, और उसके बच्चे ने क्या किया, और उसके बच्चे के बच्चे ने क्या किया। इन सब के पास आज सारी दुनिया के पास टाइम है, और उन लोगों को जो रियल लाइफ हीरोज है उनको कोई फॉलो नहीं करता। तो मेरा आप सबसे अपील है कि प्लीज अनुज रामत्ते के यूट्यूब को फॉलो करें और इको फ्रीक चैनल को ज्वाइन करें, अगर आपको लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है, अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी वजह से सी लेवल राइज कर रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एरियाज में, कोस्टल एरियाज में बाढ़ आ रही है। और ये भी अल्टीमेटली हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से। और इसमें नेचुरल कारण भी होते हैं ग्रीन हाउस, ये ग्लोबल वार्मिंग के, लेकिन जो हम लोग जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज जो चल रही है, वो भी एक कारण है। डिजिटलाइजेशन, ऑटोमोबाइल यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सब कहते हैं ना, एक देश कितना डेवलप्ड है ये कैसे पता चलता है? ये उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना डेवलप्ड है उससे पता चलता है। हाउ इफेक्टिव इज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंट्री, दैट डिटरमाइंस हाउ डेवलप्ड दैट इज। तो आई थिंक हमें इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेटर करने की जरूरत है। लेकिन जो भी है, मतलब हम हफ्ते में एक दिन तो डिसाइड कर ही सकते हैं कि हम मेट्रो में ट्रैवल करेंगे अगर हम अपनी कार ड्राइव करते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि पूरे रोड पे ट्रैफिक जैम होता है और हर कार में एक इंसान बैठा होता है, विच इज रियली फनी एंड विच इज लाइक not so intelligent thing on us human beings that we're doing. We take it as a status symbol that I'm driving my own car, but it is not a status symbol, I think. And now coming on to the actions that we can take to better all this, I would invite Anupama to talk about this zero waste living. Thank you everyone for listening to such a serious and boring topic, but still we have 17 participants, so I'm really glad that you're there. Anupama, over to you. Thank you, Dr. Kirti. Very well said. Facts आपने बहुत ही अच्छे तरीके से explain किए हैं, and I would say कि ये facts जो हैं ये is something that we all know, but हमारी awareness इतनी
कम है कि इवन आफ्टर नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स we might just see this and we might go back to our normal life and not do anything. And this is how मैं भी हमेशा से ऐसे ही करती थी. There was always a way, there was always a thought मेरे mind में चलता रहता था कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, क्योंकि as you mentioned initially, I have been a very environmental freak person, but because of so many other issues happening in my life, this was always secondary. Back of your mind. Yes. Yeah, and it was not important. But this whole idea, actually, I would say, came to me, and this whole thought of being very environmentally conscious was the day I became a mother. When I became a mother, the first thing that came to me was every little thing. जब मैं कहीं पे भी जाती थी, कुछ भी करती थी, my thought was कि I have to do it in such a way that my kid doesn't suffer or my kid enjoys. And gradually, and as you mentioned, like the very first step, jab I had my, like, I gave birth to my daughter. The very first thing me and my husband, we decided was that we are never going to give big parties for my birthday, my daughter's birthday. That was the first thing, because just by giving birthday parties, I felt that this is not what I want to teach her. And in fact, the first step that I took was कि birthday parties पे birthdays पे parties ना देके उस birthday को इस तरीके से celebrate करें जहाँ पे आप किसी nature related या a place where it is closer to the nature, वहाँ लेके जाऊँ उसे. Be more aware where she is living, what is earth, how close she can be to the nature. And that was like my first step. तो हर साल, now she's 4, every year what we do is we make a small effort. हम कहीं पे भी उसे घर से बाहर लेके जाते हैं, मतलब घर में नहीं रहते हैं, किसी भी छोटे जगह. अब पिछले 2 साल से तो कोविड हो रखा है, तो हमारे प्लान्स थे कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन द नियरेस्ट इज कि दिल्ली से जाके हम आगरा चले गए, दिल्ली से निकल के हम जिम कॉर्बेट चले गए, जस्ट दिल्ली घर में ना रह के बस बाहर ही निकल गए, गार्डन में, पार्क्स में चले गए. इस तरीके से आई स्टार्टेड, एंड दैट्स माय विजन कि मैं आगे भी इसे और अच्छे तरीके से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसके बर्थडेज को सेलिब्रेट करूंगी. सो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट स्टेप. Now I have been, like, recently I am moving to a new house, and I think this is like a great opportunity jo mujhe it has just come to me as from the universe. I have just utilized this opportunity fully. And the question that you asked me ki zero waste living kya hoti hai, zero waste living is exactly what you have mentioned in the slide. It is a kind of a living, it is more of a conscious living. कॉन्शियस लिविंग जब मैं ये कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी चीज खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, कुछ भी चीज फेंक रहे हैं, तो आपको हर बार अंडरस्टैंड करना है. द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज जस्ट आस्क व्हाई. मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रही हूँ, इस चीज को करने से क्या होगा. द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग कि ये चीज खरीदने से क्या होगा, ये चीज जरूरत की है या नहीं है, एंड इसे आप रिलेट करना है कि मैं ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा, मेरे ये खरीदने से क्या एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. जैसे ही आपने ये 2-3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने लग गए, आपको ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा कि जीरो वेस्ट लिविंग क्या हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे तब आप कॉन्शियस हो जाओगे. आप वो जो परचेज है या वो जो एक्स्ट्रा चीजें जो आप अपने घर में ला के रखते हैं, या जो एक्स्ट्रा चीजें जो आप फेंक रहे हैं क्योंकि वो आप यूज ही नहीं करते हैं, तब आप कॉन्शियस हो जाओगे उसके लिए, एंड आप वो चीज नहीं कर रहे होगे, या फिर आप उसको एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाओगे, या ऑप्शंस या सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाओगे कि यार ये नहीं करना है, कुछ और करना है. सो सम स्मॉल थिंग्स जो मैंने शुरू कर ली हैं. फर्स्ट इज, अब जब भी मैं ग्रोसरी लेने जाती हूँ, पहले तो मेरे पास मेरा जूट बैग 100% होता है, एंड मेरे साथ उस जूट बैग में मेरे पास और भी बैग्स होते हैं. ऑफ लेटली आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ग्रोसरी बाय करने किसी भी रिटेल स्टोर या वगैरह अगर जगह पे जाते हो, तो आप ये सोचते हो अच्छा बैग लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल रिटेल स्टोर्स प्लास्टिक नहीं दे रहे, लेकिन वो वाइट क्लॉथ मटेरियल बैग्स दे रहे हैं. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, वो बैग्स भी, इट इज जस्ट एडिंग मोर टू द पोल्यूशन, इट इज एडिंग मोर टू द डिजास्टर.
क्योंकि ऑलरेडी जब आपके पास बैग है तो वो वेस्ट बन जाएगा, जब वो बैग यूज ही नहीं होगा, वो सिर्फ वन टाइम सिंगल टाइम बैग यूजेज है, तो फिर वो क्या फायदा वो बैग लेने का। इससे अच्छा तो रीयूज करो जो आपके पास बैग्स हैं, जहां आपने मंगवाया है या आपने खरीदा है या कुछ भी किया. सो दैट इज वन थिंग विच आई डू. सेकेंड थिंग that I have started doing is, and I think all of us do, and that is conscious buying. पिछले एक साल में I have not bought an extra piece of cloth for myself or my family unless I have a good reason that why I should buy this. And the good reason shouldn't be because it is the trend. I don't follow that anymore. The whole business industry is made in such a way that it attracts things for women, for families, and women are the buyers in the family, they are the purchasers of the family, so they are the ones who are targeted. If you think about it, it's a very different psychology, jo ek alag level ka topic hai, which we can discuss further. So third thing about zero waste living, and this is about plastic, reducing the plastic. पहले तो मेरे घर में अब प्लास्टिक बॉटल्स ही नहीं है, घर में नो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, क्योंकि अगर मेरे घर में कोई भी घर से बाहर जा रहा है तो इट इज अ रूल कि वो अपना पानी खुद लेके जाएगा. एंड पानी लेके जाने के लिए आपको प्लास्टिक बॉटल की जरूरत नहीं है, आप एक स्टील की बॉटल खरीद सकते हैं या कॉपर की बॉटल्स खरीदते हैं. फोर्थ थिंग विच आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इज, बाहर से खाना जब आप ऑर्डर कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप बाहर से खाना ऑर्डर ना करके खुद ही बाहर चले जाएं? चलिए अभी तो कोविड है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, देन फाइंड आउट एन ऑप्शन कि आप घर पे ही बना दें उसे. अब तो सब लॉकडाउन में है, घर में ही है, तो व्हाई नॉट जस्ट कुक इट, क्या प्रॉब्लम है? एंड अगर आपको ये लग रहा है कि अरे मुझे कुकिंग नहीं आती, तो आस्क हेल्प. आपके सोसाइटी में, आई नो इन माय सोसाइटी एप्स देयर आर सो मेनी फीमेल्स, देयर आर सो मेनी males who have actually started their startups कि हम खाना बना के दे रहे हैं, हम खाना बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते, हम एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं which is related to food. So that's all is required. Go call them, they will make good food for you and they will give it to you. And the good part is they are also serving cutlery भी प्लास्टिक वाली नहीं, वो प्रॉपर या तो स्टील की कटलरी देंगे या सेरेमिक कटलरी देंगे, लेके आएंगे, खुद करेंगे और लेके जाएंगे. That is another way where you stop the usage of plastic. क्योंकि अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर करोगे तो everything is coming in plastic. And if you think कि आप बाहर जा सकते हैं, means post COVID, go take your bowls, take your things outside. That is my plan to do as well. मतलब मैं तो अपना डब्बा लेके जाने वाली हूँ बाहर और बोलने वाली हूँ, भैया प्लीज इसमें भर दीजिए, इसमें खाना भर दीजिए और मैं लेके चली जाऊंगी. So that is another thing which I have started. The whole idea is that what I'm doing is all those efforts जहाँ मुझे ऐसा लगता था अरे यार लोग क्या कहेंगे, ये कैसे कर सकती हूँ, I have stopped that and I have just started questioning myself, how will it affect my daughter in the next 20 years? एक एक्स्ट्रा plate of plastic, एक extra bag of plastic, it is affecting my daughter's life in the coming 20 years. And that is an enough reason for me to not do all what I am doing right now. Yes, Dr. Kirti, you had something to share. या वो बाहर जाके खाना पैक करने से मुझे याद आया कि बहुत बार हम फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करने जाते हैं या कुलीग्स के साथ, जहाँ पे बहुत सारा खाना कभी ज्यादा ऑर्डर हो जाता है. तो आई हैव एन हैबिट टू आस्क द रेस्टोरेंट पीपल टू प्लीज पैक द फूड. तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि फ्रेंड्स ने बोला कि तो पागल है क्या, अच्छा लगता है क्या? And I just ignore whatever comments people give me, because I just tell them that even if I'm not eating, then I'll give it to somebody. And आप रास्ते में लौटते वक्त आप मत ले जाओ अपने घर पे, अगर आपको नहीं ले जाना है. आप रास्ते में आपको रेड लाइट पे इतने लोग मिलते हैं, आप उनको वो पकड़ा दो, they'll be happy to. बट वो जो रेस्टोरेंट पे खाना छोड़ना, मतलब मैंने ऐसी चीजें पैक करवाई है कि जब मैं वेटर को बोलती हूँ कि आप प्लीज इसे पैक कर दो, तो मेरी शक्ल देखता है, ये भी पैक करना है? मैं बोलती हूँ हाँ ये भी पैक करना है. So it's like it's waiter's job. Just ask them to pack. Don't let it. The important thing which I feel is something which none of us realize, but this one thing if you do, you are actually saving millions and billions usage of plastic, and that is your toothbrush. The toothbrush that you use every day in the morning is made out of plastic. Stop that. Use a bamboo toothbrush. Bamboo toothbrush आते हैं with different designs. There is one very famous environmentalist. Her name is Seher Mansoor, and she has started her own startup which is called as Bare Necessity. She started up her own
zero waste products. She has her own book. I am actually using her book to find out solutions. So she has given solutions as simple as to make toothpaste in your home. So I know everyone can say that अरे हमारे पास time नहीं है, काम बहुत है, ये है वो है. If we don't stop now, the world is over. So and still people say this कि मेरे पास time नहीं है करने के लिए. Make a conscious effort and just do it. He has got something to share. Let me unmute her. Hi. Hello. Yeah. Hi, Anupama. I want to share this thing कि जो suggestion you just gave कि हम लोगों को अपना खाना खाने बाहर ही चले जाना चाहिए, order करने में कितना plastic waste होता है. We actually do it. मेरी कार में मैंने 2 glasses, spoon, forks and plates permanent एक set बना के रखा हुआ है. I live in Jamshedpur and it's a small place. तो हम लोग बहुत ड्राइव करते रहते हैं. तो what we do, हम अपने बेबी को भी लेके जाते हैं. हम जहां पे भी जाते हैं, रोड साइड फूड खाना है या कुछ भी खाना, वी गिव आवर बर्तन उनको, अपना प्लेट ये वो, और उसी में लेके हम लोग खाते हैं. तो वी एक्चुअली डू इट. तो हम लोग सब ऐसा कर सकते हैं कि अपनी कार में एक छोटा सा किट बना के रख सकते हैं. Preeti, why don't you start your video? Yeah. No, I'm in like dark because otherwise my baby will come and interrupt me. Okay. So, and second thing, one suggestion I want to give, which I am following since last 7 years, like packet wala milk. I don't like it because उसके पीछे बहुत सारे reasons है, but one reason is कि every day जो इतना सारा plastic में जो आता है milk, I don't want to consume it. क्योंकि one thing is plastic waste. Second thing, कि जो milk कितने दिन पहले गाय ने दिया होगा, उसको कब उन्होंने पैकिंग की होगी, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया होगा, वो कब ट्रांसपोर्ट हुआ होगा ट्रक में, फिर वो पैकेट्स में आया होगा, फिर आपके पास आया होगा, तो वो हेल्दी तो बिल्कुल नहीं है. सेकंड, वो कितना आर्टिफिशियल है, कितना एडल्ट्रेटेड है, वो भी आपको पता है, क्योंकि पूरा नींबू भी निचोड़ दोगे तो वो फटेगा भी नहीं. थर्ड थिंग, जो हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, इट इज बिकॉज ऑफ अस. यहाँ पे इतने सारे मेरी पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मैं अकेली हूँ जो बंदा आता है और मेरे लिए अपने घर से गाय का दूध निकाल के मेरे लिए लेकर आता है, बाकी सब पैकेट वाला दूध लेते हैं. लेकिन वो दूध इतना अच्छा होता है, मैं डेली अपने बर्तन में लेती हूँ, उसे गर्म करती हूँ, उससे मैं दही भी बनाती हूँ, उससे मैं अपने बेबी के लिए घी भी बनाती हूँ, एंड वो नींबू के एक ड्रॉप से फट भी जाता है. तो वो इतना हेल्दी है, और वो बंदा जो मेरे को मिल्क देने आ रहा है, या मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने घर में गाय पाल रहा है और वो डेली दूध निकाल रहा है और डेली मुझे देने आ रहा है. तो वो अर्बनाइजेशन को कम करता है. सिमिलरली फार्मिंग भी इसीलिए कम हो चुकी है अभी, इसीलिए लोग पैकेट फूड में बिलीव करने लगे, बिकॉज ऑफ अस. हम लोग इतना पैकेट वाला पैकेट कितना पैकेट वाला खाओगे, इट इज ऑल अडल्टरेटेड. प्लस ऑक्सीटोसिन, इट इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई आई डोंट यूज पैकेट वाला मिल्क, क्योंकि वो सारा मशीन से काउस का मिल्क निकाला जाता है, उसमें ऑक्सीटोसिन मिलाया जाता है, जो कि हार्मोन डिसबैलेंस करता है पूरी किड्स में, पूरे यंग जनरेशन में ऑक्सीटोसिन डिसबैलेंस करके रखा हुआ है. फीमेल्स, गर्ल्स आर हैविंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब उनके पीरियड्स आ जा रहे 6th क्लास में, 5th क्लास में, 4th क्लास में. कैन यू बिलीव इट? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीटोसिन. आई वुड नॉट से कि जो गाय का दूध मेरा मिल्क मैन निकाल के मुझे दे रहा है उसने ऑक्सीटोसिन नहीं दिया होगा, बट उसने जितना दिया होगा उसका कम से कम 10 टाइम्स जो इंडस्ट्री वाले लोग गाय का मिल्क निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, वो 10 टाइम्स ज्यादा है. तो एटलीस्ट आई एम ऑल्सो कंज्यूमिंग ऑक्सीटोसिन, बट इन अ वेरी लो क्वांटिटी. तो आई वुड सजेस्ट, जो भी जिनके लिए भी पॉसिबल है, अगर कोई लोकल वेंडर है, लोकल बंदे लोग हैं जिन्होंने घर में 4, 5, 10 गाय पाल रखी है और वो दूध देने आ रहे हैं आपके आसपास, प्लीज आस्क देम एंड टेक मिल्क फ्रॉम देम. हाँ, वो इतना टेस्टी नहीं होगा जितना अमूल मिल्क है या जो भी पैकेट वाला मिल्क है, मदर डेयरी का मिल्क है, बिकॉज नेचुरली जो चीज आपकी बॉडी से निकल रही है, एनिमल्स की बॉडी से निकल रही है, वो इतना टेस्टी हो भी नहीं सकता है. तो दिस इज माय वन सजेशन कि जो भी लोग फॉलो कर सके. थैंक यू. Thank you so much, Dr. Preeti. That was a wonderful suggestion. And yeah, exactly. So these are certain things, like जैसे आपने अभी बताया कि this is what you're doing, and that's all what I'm saying. You have solutions. ये कोई ऐसा यहाँ पे zero waste living के लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत भी नहीं है. It is just a simple thought कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, and क्या ये जरूरी है
क्या ये एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा या नहीं करेगा. अगर ये नहीं करेगा तो फिर फाइंड आउट अ सोल्यूशन टू इट कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करें, या आप इस क्या इसकी जरूरत भी है करने की. सिंपल. एंड देयर यू स्टार्ट हैविंग अ जीरो वेस्ट लिविंग. हम जस्ट अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लो. अपने घर में स्टार्ट हैविंग मोर एंड मोर प्लांट्स. एंड जैसे दीदी डॉक्टर कीर्ति सेठ की शादी आपके हॉस्पिटल में दे एक्चुअली गेव अ प्लांट. दैट्स अ वंडरफुल आइडिया. क्यों नहीं आप हर किसी के बर्थडे पे एक प्लांट गिफ्ट कर देते हो. किसी के घर के किसी की शादी हो रही तो प्लांट गिफ्ट करो ना उसे. क्या प्रॉब्लम है. Preeti gifted me 3 plants on my birthday. Yeah, I mean that's an amazing thing. You are giving a blessing actually. Wow, beautiful plans, As and beautiful when- plans. Yeah, thank you for sharing that. Wow, wonderful. Preeti, you have to gift me also. Sure, next time. Thank you Jagriti, and thank you Dr. Kirti for Wow, what a session it was. Environmental literacy, reduce water waste, reduce electricity waste, reduce emission of greenhouse effect, segregate wet and dry waste, waste, zero waste living. Wow, wow, wow. Then bottle wala idea was very good कि हर बैग में एक bottle रख दो. And local दूध वाला vendor, and वो दूध brush, bamboo toothbrush. It was a news to me. वो bamboo toothbrush. That's really awesome session, and I loved it. I think all the members have definitely loved it. Anybody have any questions or anything to say? Please come up and share. It's very lovely to listen all of you. Wow, little hi, little. Okay, to those who are new, Preeti is my sister and मैं little की मासी हूँ, proud मासी. Thank you Preeti for bringing this. Preeti मैंने image दिखाया है. Can anybody identify what is this? Pollution. It's industrial pollution. Yeah, this is exactly electricity manufacturing plant. इसका ये फोटो है. Power manufacturing plant. Yeah, electricity produce करने के लिए fossil fuel को burn किया जाता है, जैसे कि कोयला या oil. उसको जला के thermal plants में electricity produce होती है, जिससे कि not only temperature बढ़ता है, ये जो इतना pollution produce होता है. This is the biggest reason we should not waste electricity because already उसके जैसे कि सतीश ने बताया पानी तो वेस्ट होता ही है, पर और उसके मल्टीपल रीजन है. ये मैं बताना भूल गई थी. इसके जागृति, thank you for hosting the session. You literally got added your new flavors to the session. Has somebody raised the hand? Yes, Dr. Surinder ji. हाँ. Surinder ji has raised his. Hello. Hello, sir. Manji. Well, that was regarding the local vendors. Those rest of the other suggestions were very good. But regarding local vendor, I have got little objection from the medical point of view, which I feel the pasteurization is not done from the local vendors, and that carries a lot of risk of heavy contamination. And the commonest organism which is been transmitted is the tuberculous bacilli. The pasteurization is not equivalent to what kind of boiling we do. No, let us modify that particular issue. And lot of contamination in terms of handling, right from taking out the milk down to pouring the water from outside. Although we say that it's a pure milk, it's not so. Definitely there is 1 liter milk is made into 2 liters of milk. So that should be avoided. It's not a healthy option at all. That's what I personally feel. People may differ, but then this is what medically that is correct. Actually, तो milk ही healthy option नहीं रहा है इंसान के लिए. Exactly. Actually, इसमें भी बहुत debate चल रहा है कि humans, there are books that have been written on milk is a very big poison. Milk, Go point of vegan. view, milk, I always think that it is not made by nature for us. We are taking away that milk from the baby cow part, and then we are trying to use it for ourselves. It's not a good option at all, definitely.
Then it's now made into a regular practice to stop. It's a business, a big business. Like अमूल का दूध तो सभी लोग पीते हैं, ऐसा बोलते हैं ना दुनिया के, kind of. So that is something which possibly cannot be changed. That is why, it's a personal option for anyone to decide whether they want to have milk or not. But there is no substitute for milk also. I mean, like it's a rich source of calcium, it's a rich source of, for that matter. एक्चुअली इस पे अलग से हम बात करेंगे. Yes, certainly. मिल्क अपने आप में एक टॉपिक है और उसके सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, और बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह मिल्क के अगेंस्ट भी हैं. दे आर एक्चुअली गिविंग राइट सब्स्टिट्यूट. सो लेट अस पुट इट फॉर फ्यूचर. थैंक यू सुरेंद्र जी. So over to you, Jagrati. Yes, well, as I already said, this is a very lovely session, and we really, I really want to thank Dr. Kirti and Anupama, and of course PTD for her spices in the session. And yeah, it was a great session. And I think if there is any question in the audience, yes, Mr. Nitin, can you please unmute Mr. Nitin? I have to say something that the session was super. It was eye-opening for my from my side, because I was very. I understand that environmental should be conserved, but I was when you say about that when I go to with my friends, I have a issue that there is a wastage of food is happening in that, but I never buy out that food because of my ego, because I feel that if someone feels that like it will be a shame for me. But I understand that it is I can that was eye opening for me, because I can give to the some people who really need that. It was a eye opening from the session. And about the everything about the eco bricks, everything, it was a nice session about regarding everything it should be done in our life for the future generation and for our generation too. So thank you, Kirti and Anupama, and every person who has given the session. It was eye-opening for me, and I will surely make my change in my life. Then I will try to change the life for the people, different people. So thank you for the session. Thank you so much. Thank अगर you. आज से 10 साल बाद क्लास का वो जो होगा ना, ट्रस्टीज का नाम गिने जाएंगे, तो उसमें नितिन का एक नाम जरूर होगा, because he is always there. No, ma'am, that's not the issue, ma'am, because saying is you can say many things, but implementing is very difficult, ma'am, because it's very tough to be an environmental. Yeah, execution is very tough, because I in my home I have the cloth bags, but I forgot to take the cloth bags to my shops. So I really, my mother will scold me. You have brought in the cloth bag, and you are not going and taking the cloth bag, and you are taking the plastic to the home. So it was eye opening that yeah, I am doing that. I am buying the cloth, but I am not implementing in my life. So I should do the implementation in my life at first. Only then I should preach. That's why Anupama ma'am's doing the practically everything, and she's preaching is very nice, ma'am. Thank you so much, ma'am. You're welcome. And Nitin, I should give you one more suggestion, and that is the moment you start doing it, there'll be a lot of people who will actually not support you, and they will be saying, why are you doing this? For example, just taking your cloth bags outside or your own dabbas outside, people will actually start asking you, ye kya kar raha hai ye? Yeah. Yeah. Just Yeah, I feel like that. I feel. And don't stop yourself, because whenever there is a thought like that, then and there you have to start telling ki aap kya kar rahe ho. Just ask this question ki aap kya kar rahe ho? मैं तो ये कर ही रही हूँ, but आप क्या कर रहे हो? And just come out of and do your work and just come out. Yeah, thank you. No, so we will I feel the society will feel something else. When we take the dabba to the somewhere place, people will see like that. No, it's some peculiar being is doing some different things. So I feel, yeah, I like to do, but because of the social pressure, I'm not doing that. Because of, I don't know why I know that environmental should be protected, but if when it comes to the practical scenario, right, it is us who have to change it, Nitin. It is you and me who has to change it. This Yeah. It is coming from us.
मैं और आप ही मिलके इसे चेंज करेंगे, तभी वो सोशल प्रेशर कम होगा और तभी ही ये इस तरीके से ऑड नहीं दिखेगा. Yeah, ma'am. Thank you. Like that. एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी स्टोरी. एक बार एक समुद्र के किनारे पे दादा और उसका पोता जा रहे होते हैं. तो समुद्र पे वेव के साथ में जो स्टारफिश आती है वो तड़प रही होती है, और हर वेव के साथ में बहुत सारी स्टारफिश आती है. तो वो जो पोता होता है वो एक एक स्टारफिश को उठा उठा के पानी में फेंकता है. तो उसका दादा बोलता है, बेटा छोड़ दो, तुम्हारे करने से क्या होगा, ये इतनी सारी स्टारफिशेस है, किसको फर्क पड़ेगा, ये तुम छोड़ दो, ये सब बेकार का काम है. तो उसका पोता उस एक स्टारफिश को उठा के फेंकता है और बोलता है, दादू इसको फर्क पड़ेगा. तो इवन एवरी सिंगल बिट. तो ये स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी, इतनी पावरफुल है कि मुझे याद रहती है. सो यू रिमेम्बर दिस, कि हमारे एक स्टेप करने से फर्क पड़ता है. तो वी हैव टू डू इट. Thank you everybody. Thank you, Jagu. Jagriti, you accepted the invite. It's okay, to Didi. You the can session. call me Jagu also. Yeah, so it was really great, and you gave your you gave your takeaway points, so which was a special tadka to the session. Thank you so much. Yeah, we can end the session. Thank you. Okay, bye for now. Please be safe, remain safe, stay at home. Love you. Bye. Bye.